انسانی زندگی کے تین مرحلوں اور تین دوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، جبکہ وہ نہایت ہی لاغر اور کمزور ہوتا ہے۔ اس کی ہڈیاں، اس کے اعضاء اور جوارح، اس کے جسم کمزور ہوتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے وہی بچہ پروان چڑھتا ہے، زندگی کے ماہ و سال کو گزارتا ہے اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ جوانی کے جب وہ مرحلے میں آتا ہے تو وہی کمزور اور ناتواں اور دبلا اور پتلا نہایت ہی ضعیف بچہ طاقت اور قوت والا ہو جاتا ہے۔ جوانی کی طاقتیں اور جوانی کی قوتیں، جوانی کی شان اور شوکتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے زندگی آگے بڑھتی ہے اور انسان اپنی زندگی کے تیسرے اور آخری مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور یہ تیسرا مرحلہ انسان کے بڑھاپے کا ہوتا ہے، جہاں دوبارہ انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اعضائے جسم اور جسم جواب دے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسانی زندگی کے ان تینوں اسٹیپس کو، ان تینوں دوروں کو، ان تینوں مرحلوں کو بیان کیا، اور ان تینوں مراحل میں انسان کی جسمانی حالت کیا ہوتی ہے، انسان کی نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے، انسان کی مینٹالٹی کیا ہوتی ہے، اس کی خواہشات، اس کے مطالبات کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ وہ اللہ کی ذات جو تمہیں کمزوری کے عالم میں پیدا کرتا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں قوت اور طاقت کے مرحلے تک پہنچاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں کمزور اور ضعیفی اور کمزوری کے مرحلے میں اور بڑھاپے کے مرحلے میں داخل کر دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر۔ وہ اللہ جیسے چاہتا ہے تمہیں پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد زندگی کے مختلف مرحلوں سے، مختلف دوروں سے گزارتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، وہ ہر چیز کا جاننے والا، وہ تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں انسانی زندگی کے تین مرحلوں کا اور ان تینوں مرحلوں میں انسان کی جسمانی حالت و کیفیت کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام کے اوپر انسانی زندگی کے مختلف مرحلوں میں انسان کی جو نفسیات ہوا کرتی ہیں، اس کی نفسیات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، انسان کی خواہشات میں جو چینجنگ آتی ہے، انسان اپنے مختلف مرحلوں میں جو مطالبات رکھتا ہے، جو ترجیحات رکھتا ہے، ان ترجیحات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اشارتاً بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ لوگوں جان لینا، دنیا کی یہ زندگی کھیل اور تماشا ہے، دنیا کی یہ زندگی زینت کی زندگی ہے، دنیا کی یہ زندگی آپس میں فخر و مباحات، تکبر اور گھمنڈ کی زندگی ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، دنیا کی یہ زندگی مال اور دولت کی کثرت کی لالچ کی زندگی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو 5 چیزوں سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات کے اوپر دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کہا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے لعب و لہو کہا، کہیں پر لہو و لعب کہا، لیکن قرآن مجید کی آیت
کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو 5 صفتوں سے متصف کیا ہے، اور یہ صفتیں صرف دنیا کی زندگی کی نہیں ہیں، بلکہ یہ صفتیں انسان کے مختلف مراحل، زندگی کے مختلف مرحلوں میں اس کے تدریجی ارتقائی اور نفسیات کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں کی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اور کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لینا کہ دنیا کی زندگی لعب ہے۔ در حقیقت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں مختلف مرحلوں میں، جو اس کی نفسیات میں چینجنگ آتی ہے، جو اس کی خواہشات اور مطالبات میں تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً بیان کیا اور کہا کہ انسان کی زندگی کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے لعب سے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لینا کہ دنیا کی زندگی لعب ہے، اور لعب کہتے ہیں اس کھیل کو قول او فعل لا فائدۃ من ورائہ، ایسے قول و فعل کو اور ایسے کھیل کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما اور کوئی مقصد پوشیدہ اور مطلوب نہیں ہوتا ہے، اس کھیل کو لعب کہا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے لعب سے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے پہلے مرحلے میں ہوتا ہے، وہ اس دور میں ہوتا ہے کہ اس کی نفسیات صرف اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ کھیلتا رہے، اور اس کھیل کے پیچھے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کھیل کے پیچھے اس کا کوئی فائدہ کار فرما اور پوشیدہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے کھیلتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھانے اور پینے کی چیزوں سے کھیلتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان وہ بچہ لعب کے مرحلے سے پرواز کرتے ہوئے اور پروان چڑھتے ہوئے وہ لہو کے مرحلے میں اپنی زندگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لینا کہ دنیا کی زندگی لعب کے بعد لہو بن جاتی ہے، اور لہو اس کھیل کو کہا جاتا ہے جس کے پیچھے کوئی فائدہ ہو، جس کے اندر کوئی لذت ہو، جس کے اندر کوئی لذت پوشیدہ ہو، جس میں بندے کو احساس ہو لذت و فرحت کا، جس میں بندے کو لطف کا احساس ہو، اس کھیل کو لہو کہا جاتا ہے۔ ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اسے کھیل میں لطف آنے لگتا ہے، اسے اپنے کھیلوں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں انسانی زندگی کے دوسرے مرحلے کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے لہو سے تعبیر کیا کہ بندہ جب لعب کے مرحلے سے اپنے بے مقصد کھیل سے جب اوپر بڑھتا ہے اور زندگی کے ماہ و سال کو گزار کر کے جب تقریباً وہ 9-10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اب اس کے کھیل کے اندر لذت آنے لگتی ہے، وہ کھیل سے لذت چاہتا ہے، وہ لطف اٹھانے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے تیسرے مرحلے کو زینت سے تعبیر کیا اور کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت، جان لینا کہ دنیا کی زندگی زینت کی زندگی ہے۔ ایک بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، بالغ ہو جانے کے بعد وہ فیشنیبل بن جاتا ہے، وہ فیشن اختیار کرنے لگتا ہے، وہ بننے اور سنورنے لگتا ہے، وہ سجنے اور دھجنے لگتا ہے، اسے اپنے جوتوں کی فکر ہوتی ہے، اسے اپنے لباس کی فکر ہوتی ہے، اسے اپنے ہیئر سٹائل کی فکر ہوتی ہے، اسے ہر مہینے نیا لباس چاہیے، اسے نئے جوتے چاہیے، اسے نیا لانچ ہونے والا موبائل چاہیے، اسے نیو لانچ ہونے والی گاڑیاں چاہیے۔ اب وہ بلوغت کے مرحلے کو پہنچ چکا ہے، وہ زینت کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ انسان کی نفسیات بلوغت کے مرحلے کے بعد وہ زینت کا مطالبہ کرتی ہیں، اور خاص طور سے جب بچیاں جب بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہیں تو وہ سجنے اور دھجنے لگتی ہیں، وہ بننے اور سنورنے لگتی ہیں۔ ہر پروگرام کے لیے، ہر شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے انہیں نیا لباس چاہیے اور نیا جوڑا چاہیے۔ تو انسانی زندگی کا جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اسے قرآن نے زینت سے تعبیر کیا۔ ایک بچہ جب تیسرے مرحلے میں پہنچتا ہے وہ زینت اختیار کرنے لگتا ہے، اس کی نفسیات زینت کے جانب مائل ہونے لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہی انسان دھیرے دھیرے زندگی کے ماہ و سال کو گزارنے کے بعد جب آگے بڑھتا ہے، اپنی زندگی کے چوتھے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر
तकासुरुम बैनकुम। अब वो बच्चा परवास चलते चलते और बढ़ते बढ़ते वो जिंदगी के चौथे मरहले में दाखिल हो चुका है। तकरीबन अपने उम्र के 25 से 30 साल की उम्र में दाखिल हो चुका है। अब वो अपनी सारी चीजों के ऊपर फख्र करता है, घमंड करता है, फख्र मवाहात करता है। वो अपनी चीजों को बड़ा और चढ़ा करके देखता है। वो अपने ओहदे और मनसब पर फख्र करता है, वो अपने इल्म के ऊपर फख्र करता है, वो अपने मालो मनाल के ऊपर फख्र करता है, वो अपने जाहो जलाल के ऊपर फख्र करता है, वो अपने माल और दौलत के ऊपर, वो अपनी बनावटों और अपने लिबासों के ऊपर फख्र करने लगता है। इस तरीके से एक बच्चा जब अपनी जिंदगी के चौथे मरहले में दाखिल होता है तो उसकी नफ्सियात इस बात का मुतालबा करती है कि वो फख्र मबाहत से काम ले। फिर उसके बाद वही बच्चा जब परवान चलते चलते जिंदगी के माहो साल को गुजारते गुजारते जब वो जिंदगी के 5वें मरहले में दाखिल होता है, तकरीबन 40 साल की उम्र को पहुंचता है, अब उसे जीनत से मतलब नहीं होता, अब उसे लहव लईब से मतलब नहीं होता है, अब उसे फख्र मुबाहात से मतलब नहीं होता है। वो तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, अब उसकी नफ्सियात उससे इस बात का मुतालबा करती है, उसका दिलो दिमाग इस बात का मुतालबा करता है कि अब उसके पास माल और दौलत की कसरत होनी चाहिए। उसके ज़हन और दिमाग के अंदर माल की मोहब्बत बैठने लगती है और 40 साल की उम्र के बाद इंसान माल और दौलत का रसिया और दिलदादा बन जाता है। यह इंसान की नफ्सियात होती है। और धीरे धीरे जैसे ही उम्र बढ़ती है, 40 साल के बाद जैसे ही इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, जिंदगी के माहो साल को गुजारता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माल और दौलत की मोहब्बत उसके ज़हन और दिमाग के ऊपर छाती जाती है। उठाइए सहीहुल बुखारी जल्द दोम किताबुर रकाक की वो हदीस कि जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यज़ालु कल्बुल कबीर शाबन फी हुब्बिस्नतैन फी हुब्बिद दुनिया व तूलिल अमल। एक इंसान जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो बुढ़ापे में बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे उसका बुढ़ापा आगे बढ़ता है, दो चीजों की मोहब्बत उसके ऊपर गालिब आती जाती है। दो चीजों की मोहब्बत में उसका दिल जवान होने लगता है। फी हुब्बिद दुनिया व तूलिल अमल, दुनिया की मोहब्बत उसके दिलो दिमाग के ऊपर छाने लगती है और लंबी चौड़ी ख्वाहिशात उसके ज़हन और दिमाग के अंदर पैदा होने लगती है। यहां तक के इंसान के ज़हन और दिमाग के ऊपर तकासुर फिल अमवाल वल औलाद इस कदर 40 साल की उम्र के बाद छा जाता है कि माल की मोहब्बत इस कदर उसके ज़हन और दिमाग के ऊपर गालिब आ जाती है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। माल और दौलत की मोहब्बत ने बुढ़ापे के इस आलम में तुम्हें इस कदर गाफिल कर दिया है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में पहुंच गए, तुम्हें मौत के घाट उतार दिया गया, तुम्हें कब्रों में उतार करके दफना दिया गया कि फिर भी तुम्हारे माल और दौलत की मोहब्बत तुम्हारे ज़हन दिमाग से नहीं निकली। अल्हाकुमुत तकासुर, माल और दौलत की मोहब्बत ने तुम्हें फराइज़ व वाजिबात से, दीन से और हुकूक से इस कदर गाफिल कर दिया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम दीन से गाफिल हो गए, माल की मोहब्बत के इस कदर, माल की मोहब्बत में इस कदर मशगूल हो गए और माल के इस कदर दिलदादा और रसिया हो गए, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम कब्रों में पहुंच गए और तुम्हें कब्रों में दफन कर दिया गया। इस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इंसानी जिंदगी के मरहलों का तज़किरा किया, इंसान के जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में जो इंसान की जिस्मानी हालत होती है उन जिस्मानी तब्दीलियों का तज़किरा किया। जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों में इंसान की जो नफ्सियात होती है, इंसान के जो मुतालबात होते हैं उन मुतालबात का तज़किरा किया और तज़किरा करने के बाद इरशाद फरमाया ये ख्वाहिशात, ये नफ्सियात, ये तुम्हारे मुतालबात, ये तुम्हारी तरजीहात, याद रखना ये सब दुनिया की जिंदगी तक है, ये दुनिया की जिंदगी और दुनिया के मालो मता के ताल्लुक से है, ये दुनिया की नेमतों के ताल्लुक से है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इन सारी नफ्सियात को बयान करने के बाद, इन सारे मुतालबात को बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। याद रखना दुनिया की ये जिंदगी धोखे का एक सामान है। तुम्हारी नफ्सियात तुम्हें धोखे में मुब्तला करके तुम्हें दीन से, तुम्हें तुम्हारे फराइज से गाफिल कर सकती है। अल्लाह ताला ने
قرآن مجید کے اندر جس طریقے سے ان نفسیات کو بیان کیا ہے، جس طریقے سے زندگی کے ان مراحل کو بیان کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور مذہب اسلام نے زندگی کے مختلف مراحل میں موجود افراد کے لیے الگ الگ اور علیحدہ علیحدہ احکامات بھی صادر فرمائے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ بچے جو لاغر ہیں، جو ناتواں ہیں، ان کے اوپر عبادات کا بوجھ ان کی پیدائش کے بعد فوراً لاد دیا گیا ہو کہ پیدا ہوتے ہی انہیں روزہ رکھنا ہے، پیدا ہوتے ہی انہیں نمازیں ادا کرنا ہے، پیدا ہوتے ہی انہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، پیدا ہوتے ہی انہیں حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اور مذہب اسلام نے انسان کی جسمانی حالتوں کا بھی اعتبار کیا ہے، اس کی نفسیات کا بھی اعتبار کیا، اور انسان کی جسمانی حالت اور اس کی نفسیاتی کیفیتوں کا اعتبار کر کے اس کو مد نظر رکھے اسلام نے مختلف مراحل کے افراد کے لیے الگ الگ علیحدہ اور خصوصی احکامات بھی صادر فرمائے ہیں۔ چنانچہ وہ بچے جو بالکل کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں ان کے لیے اسلام نے فوراً نماز ادا کرنے کا اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کے والدین کو کیا حکم ہوتا ہے۔ اٹھائیے سنن نبی داؤد کی روایت اور حدیث کے راوی حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، عمرو بن شعیب بن محبن بن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، ان بچوں کو حکم نہیں دیا گیا بلکہ ان کے والدین کو حکم ہوا اور کہا گیا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، ابھی کھیل کود کے مرحلے میں ہے، کھیل کود کے اس مرحلے میں تم انہیں نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے مرحلے کو پہنچ جائے، جب وہ لعب کے مرحلے سے لہو کے مرحلے میں داخل ہو جائے، جب وہ کھیل کود میں لذت حاصل کرنے لگ جائے، تو انہیں نماز ترک کرنے پر انہیں ان کے اوپر تادیبی کاروائی کرو، اور وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں کو تم علیحدہ اور جدا کر دو، کیونکہ وہ ٹین ایج کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، وہ لذت کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لذت حاصل کرنے کے چکر میں وہ غلط راہ پکڑ لیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، 10 سال کے جب ہو جائیں، جب وہ لذت کے مرحلے میں پہنچ جائے، ان کے بستروں کو جدا کر دیا جائے۔ مذہب اسلام نے اسی طریقے سے بزرگوں کے لیے بہت ساری رخصتیں ان کی جسمانی حالتوں کی رعایت کرتے ہوئے، ان کی نفسیات کا اعتبار کرتے ہوئے ان کے لیے بہت ساری رخصتیں اور بہت سارے الگ الگ خصوصی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ یہاں تک کہ مذہب اسلام نے بزرگوں کا اس قدر اہتمام کیا کہ بزرگوں کے لیے جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بزرگوں کے لیے باقاعدہ ایک دعا سکھلائی اور کہا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے لیے یہ دعا سکھلائی حتی اذا بلغ اشدہ، جب ایک بچہ پروان چڑھتے چڑھتے اپنی زندگی کو گزارتے گزارتے جب وہ اپنے جسم کے پورے کمال کے مرحلے کو پہنچتا ہے، وہ بلغ 40 سنہ، جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کی عقل مکمل ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی اور کہا کہ تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم یہ دعا کرو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تمہاری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تم نے میرے اوپر نازل کی ہیں اور میرے والدین کے اوپر نازل کی ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے میرے رب تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جو نیک اعمال تجھے راضی اور خوش کرتے رہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، رب العالمین میں 40 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میرے بچے بھی اب تربیت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری ضروریت کی اصلاح کر دینا۔ انی تبت الیک، رب العالمین 40 سال کی اس عمر میں بہت ساری غلطیاں، بہت ساری کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہوں گی، بچپن کی ہلڑ بازیاں تھیں، جوانی کی بیوقوفیاں تھیں، جوانی کی بیوقوفیوں میں
बहुत सारी गलतियां सरजद हुई होंगी, इन्नी तुब्तु इलैक, मैं तेरे दरबार में तौबा करता हूँ, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मेरे रब मैं मुसलमानों में से हूँ। इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुजुर्गों को ये दुआ सिखलाई और कहा है कि जब वो 40 साल की उम्र को पहुंच जाए तो अपने लिए ये खुसूसी दुआ करे, और इन दुआओं में जो मज़ामीन बयान किए गए हैं, जिन चीजों का मुतालबा किया गया है, उन चीजों को बजाते खुद करने की कोशिश करें। इस तरीके से इस्लाम ने इस इंसान की जिस्मानी हालतों की रियायत की है। और फिर मैंने जैसा कि शुरू में आयत करीमा पढ़ी थी कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, दो कमजोरियों के दरमियान, बचपन की कमजोरी और बुढ़ापे की दो कमजोरियों के दरमियान, बुढ़ापे और बचपन की कमजोरियों के दरमियान एक ताकत और कुव्वत का, एक शान और शौकत का मरहला होता है, जिसे हम मरहलतुश शबाब कहते हैं, जिसे जवानी का मरहला कहते हैं। मज़हब इस्लाम ने जवानी के इस मरहले की काफी रियायत की है, और जवानी के इस मरहले को मद्देनजर रखते हुए नौजवानों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अंबिया की, सालिहीन की जवानियों का तज़किरा किया है, ताकि उम्मत के वो नौजवान जो अपनी ताकत और कुव्वत के मरहले में है, जो अपनी शान और शौकत के मरहले में है, वो दुनिया की लज्जतों से कट करके, दुनिया के मालो मता से हट करके, वो उम्मत के इन सुलहा, इन सालिहीन और अंबिया की सीरतों को पढ़ने के बाद इनके सीरतों को अपना आइडियल और इनको अपना उसवा और नमूना बनाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी का तज़किरा किया है कि हजरत इब्राहीम अपनी जवानी के आलम में किस कदर दीन के ऊपर साबित कदम थे, उनके पांव के अंदर किस कदर सबात और साबित कदमी थी, उनके अंदर किस कदर इस्तिकामत थी। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम की जवानी का तज़किरा किया है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़पोते हजरत यूसुफ की जवानी का तज़किरा, उनके हुस्न जमाल का तज़किरा, उनकी पाक दामनी का भी तज़किरा किया है, ताकि उम्मत के नौजवान हजरत यूसुफ की जवानी, उनकी पाक दामनी को पढ़ करके अपने अंदर इफ़्फ़त और पाक दामनी पैदा करें। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी का जिक्र किया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जवानी के आलम में किस कदर अमानतदार और दयानतदार और किस कदर शर्म और हया के पैकर थे, ताकि उम्मत के नौजवान हजरत मूसा की जवानी को अपना आइडियल बनाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर असहाबुल कहफ का तज़किरा किया है, 7 स्लीपर्स का तज़किरा किया है, जिनको तारीख 7 स्लीपर्स के नाम से जानती है, ताकि उम्मत के नौजवान असहाबुल कहफ की साबित कदमी को अपने अंदर पैदा करें, वैसी साबित कदमी और वैसा ईमान पैदा करें। इस तरीके से अल्लाह ताला ने जा बजा कुरान मजीद के अंदर और उम्मत के नौजवानों के लिए अंबिया की जवानियों का, सलहा और सल्फे सालिहीन की जवानियों का तज़किरा किया है, ताकि उम्मत के ये नौजवान उनको अपना उसवा बनाए, ताकि उम्मत के नौजवान फुटबॉलरों, क्रिकेटरों, एक तरह की नक्काली करने के बजाय उम्मत की अंबिया की जवानियों की इत्तिबा और उनकी पैरवी करने लग जाए। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम का तज़किरा कुरान मजीद में किया है। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इराक के शहर बाबिल में पैदा होते हैं, और पैदा होने के बाद जब हक की मारिफत उन्हें हासिल होती है, जब उनका दिल तौहीद के नूर से मुनव्वर हो जाता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दिया। जब कौम ने हजरत इब्राहीम की इस दावत का इनकार कर दिया, हजरत इब्राहीम ने कहा मैं तुम्हें इस तरीके से समझाऊंगा कि तुम्हारी अक्लें ठिकाने लग जाएंगी। तल्लाही लअकीदन्ना अस्नामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, जब तुम अपने इन बुतखानों को छोड़ करके, अपने इन माबूदों को छोड़ करके, जब तुम अपने मेले और ठेले में जाओगे, जब तुम अपना ईद और त्योहार मनाने जाओगे, तो मैं तुम्हारे माबूदों के साथ वो सलूक करूंगा कि तुम्हारी अक्लें ठिकाने लग जाएंगी, तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि इनकी हैसियतें क्या है, इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है। चुनांचे कौम के लोग जब ईद मनाने के लिए
अपने बुत खाने को छोड़ करके जाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको समझाने की नीयत से फजालहुम जुज़ादन इल्ला कबीरन लहुम, सारे बुतों को तोड़ देते हैं, बड़े बुत को छोड़ देते हैं। जब कौम के लोग अपने त्योहार को मना करके, अपने ईद को मना करके अपने बुत खाने में आते हैं, देखते हैं कि हमारे माबूदान की शक्लें बिगड़ी हुई हैं, उनके हाथ और पांव टूटे हुए हैं। पूछा मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, हमारे इन माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया है? किसने इनकी गर्दनें तोड़ दी हैं? किसने इनकी नाखों और आंखों को तोड़ दिया है? किसने इनके हाथों और पांव को तोड़ दिया है? कौम के अफराद ने कहा समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, हमने एक नौजवान को सुना है, एक नई उम्र के हमने नौजवान को सुना है जो हमारे माबूदान के खिलाफ अपनी बातें रखता था, हमारे माबूदान को बातिल ठहराता था। युक़ालु लहू इब्राहीम, जिसका नाम हजरत इब्राहीम है। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत करीमा में बड़े वाज़ेह अंदाज से हजरत इब्राहीम को फता कहा है, हजरत इब्राहीम को नौजवान कहा है कि वो तुम्हारी तरीके से नौजवान थे। अपनी कौम को समझाने के लिए उन्होंने बुतों को तोड़ दिया और कहा कि ये बुत, इनको तोड़ने वाला ये बड़ा वाला बुत है। कौम ने कहा जब ये हरकत करने की सलाहियत नहीं रखता, जब ये बोलने की और चलने की सलाहियत नहीं रखता, तो ये छोटे बुतों को तोड़ने की सलाहियत कैसे रख सकता है? हजरत इब्राहीम ने कहा यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जब ये बोलने की सलाहियत नहीं रखता, जब ये तोड़ने की सलाहियत नहीं रखता, जब ये बुत अपने आप को बचाने की सलाहियत नहीं रखते, तो ये तुम्हें मुसीबतों से कैसे बचा सकते हैं? ये तुम्हारे मुआविनों मददगार कैसे बन सकते हैं? यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। चुनांचे कौम ने कहा हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम, इसको आग के हवाले कर दो और अपने माबूदों की मदद करो। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग जलाई गई और नौजवान इब्राहीम को उस आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने अपना मौजज़ा दिखाया। हजरत इब्राहीम जवान थे, अभी ऐसा नहीं हुआ कि इबादत कर करके उनके बाल पक गए हो, वो बुजुर्ग हो चुके हो, अल्लाह की इबादत में इस कदर बुजुर्ग हो गए हो कि अल्लाह ताला ने उनके साथ मौजज़ा किया हो, बल्कि अभी नई उम्र के नौजवान हैं। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम के साथ अपना मौजज़ा, नौजवान इब्राहीम के साथ अपना मौजज़ा किया था और अपनी मदद नाजिल की थी और कहा था या नारो कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू हजरत इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। फिर तारीख की निगाहों ने देखा कि उस आग में लकड़ियां जल रही थी, लेकिन उस आग ने हजरत इब्राहीम को नहीं जलाया था। और ये तो मिसाल है उन लोगों के लिए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़क्कूम के बारे में आयत करीमा नाज़िल होती है। इन्न शजरत ज़क्कूम तामुल असीम कल मुहल यग़ली फिल बतून, ज़क्कूम का जो दरख्त होगा ये जहन्नमियों की खुराक होगा। उस दरख्त के पत्ते, उसके कांटे जहन्नमियों की खुराक होंगे। कल मुहल यग़ली फिल बतून, और जब ये जहन्नमी उस पत्ते को और उसके कांटे को खाएंगे तो पेट के अंदर पानी के तरीके से, माद्दे सयाल की तरीके से जहन्नमियों के अंदर वो ज़क्कूम का दरख्त खौल उठेगा। अल्लाह ताला ने ज़क्कूम के दरख्त के बारे में कहा इन्नहा शजरतुन तख़रुजु फी अस्लिल जहीम, ये वो दरख्त है जो जहन्नम की तह में उगेगा, जो जहन्नम के अंदर उगेगा। अहले मक्का ने एतराज किया था जब जहन्नम में सिर्फ आग ही आग है और आग की खासियत यह है कि वो सारी चीजों को जला करके खाकिस्तर कर देती है, तो उस आग के अंदर ज़क्कूम का दरख्त कैसे उग सकता है? उस आग के अंदर ज़क्कूम के दरख्त की लकड़ी कैसे सलामत रह सकती है? अल्लाह ताला ने कहा यही तो तुम्हारे ईमान की आजमाइश है, यही तो तुम्हारे ईमान की आजमाइश है। वमा अरैनाका अर्रुया अल्लती वमा अरैनाका अर्रुया अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नासी वशजरतल मलऊनत फिल कुरआन, हमने जो आपको मेराज कराई थी रातों रात बैतुल्लाहिल हराम से मस्जिद अक्सा की, और मस्जिद अक्सा से हमने जन्नत और जहन्नम की जो आपको सैर कराई थी, ये लोगों के लिए, लोगों के ईमान की आजमाइश है। हम देखना चाहते हैं कि कौन आपके मेराज और इसरा को मानता है और कौन इसका इंकार कर देता है। हमने ज़क्कूम के दरख्त के बारे में, शजरे मलऊना के बारे में आयत करीमा इसलिए नाज़िल की
تاکہ ہم دیکھیں کہ کون رب کی قدرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور ایمان رکھ کر کے وہ مومن کامل بن جاتا ہے، کون رب کی قدرت کے بارے میں شک کر کے منافق بنتا ہے، اور کون رب کی ان قدرتوں کا انکار کر کے وہ کافر بن جاتا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، وہ آگ کو جس چیز کے بارے میں حکم دے آگ اسی کو جلائے گی، آگ کی خاصیت جلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں آگ کو منع کر دے کہ اس کو جلانا نہیں ہے، آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں آگ سے منع کیا، آگ نے حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا۔ دنیا کی نگاہوں نے اور تاریخ کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا، بالکل اسی طریقے سے کہ لکڑیاں جل رہی تھی لیکن حضرت ابراہیم صحیح اور سالم تھے۔ ویسے ہی جہنم میں کفار اور مشرکین اور گناہگار جلیں گے لیکن زقوم کا درخت صحیح اور سلامت باقی رہے گا۔ بہرحال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی جوانی کے عالم میں اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بڑا قدم اٹھایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت اور مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معجزہ دکھایا تھا۔ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی جوانی کا تذکرہ قرآن میں ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق ابن ابراہیم کی جوانی کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ وہ حضرت یوسف کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، جن کو حضرت یوسف کو کہا وہ کریم و شریف کا بیٹا، اس کے باپ بھی کریم و شریف، ان کے دادا بھی کریم و شریف، ان کے پردادا حضرت ابراہیم بھی نہایت شریف النفس انسان تھے۔ وہ حضرت یوسف جو حضرت ابراہیم کے پڑپوتے ان کی جوانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا اور عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا اور خرید کر کے لے کر کے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنانا چاہتے ہیں، اکرمی مسوا ہو، اس کو اچھی طریقے سے پالو اور پوسو اور اس کو بڑا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش عزیز مصر کے دربار میں ہوتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جس کا نام مفسرین نے بیان کیا ہے، عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کے اوپر فریفتہ ہو جاتی ہے، فدا اور قربان ہو جاتی ہے، اور ایک مرتبہ تنہائی کے عالم میں حضرت یوسف کو اپنے غرفہ خاص میں بلاتی ہے، وراودت قلتی هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حیت لک۔ حضرت یوسف کو عزیز مصر کی بیوی نے بہلایا اور پھسلایا اور بہلا اور پھسلا کر کے اپنے غرفہ خاص میں بلایا، وغلقت الابواب، تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا، وقالت حیت لک، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف سے کہا میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، واستبق الباب، اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف بھاگے۔ اس قدر پاک دامن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے اندر رکھی تھی، وہ تیزی کے ساتھ بھاگتے رہے، حالانکہ وہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ جاہ و جلال والی، وہ مان و ملال والی، وہ حسب و نسب والی عورت تھی جس کی طرف انسان بڑی تیزی کے ساتھ مائل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا وہ پاکیزہ بندہ، وہ پاک دامن نوجوان واستبق الباب، تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے گئے۔ پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف کا پیچھا کرتے ہوئے جاتی ہے اور حضرت یوسف کے دامن کو پیچھے سے پکڑ لیتی ہے، وقدت قمیصہ من دبر، حضرت یوسف کی قمیص کو پیچھے سے پکڑتی ہے اور حضرت یوسف کی قمیص پھٹنے لگتی ہے۔ تیزی کے ساتھ حضرت یوسف تمام دروازوں کو پار کرتے ہوئے معجزانہ طریقے سے سارے دروازے حضرت یوسف کے لیے کھل جاتے ہیں۔ مفسرین نے کہا جس قدر دروازے بند کیے گئے تھے، وغلقت الابواب، وہ سارے دروازے معجزانہ طور سے حضرت یوسف کے لیے کھل جاتے ہیں، اور حضرت یوسف جب آخری دروازے پر پہنچتے ہیں، وہ الفیا سیدھا لدى الباب، دروازے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز مصر دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، دونوں کو اس حالت میں اور اس منظر میں دیکھتا ہے، پوچھتا ہے ماجرا کیا ہے۔ فوراً اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے پورا منظر اور پورا معاملہ ہی پلٹ دیا
पूरा मंजर और पूरा मंजरनामा ही और पूरा पासा पलट दिया और कहा अपने शौहर से, अजीज मिस्र से, फमा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूआ, जो आपकी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसका बदला क्या हो सकता है, इल्ला अन युस्जन, उसका बदला यही हो सकता है। फिर सदा भी बयान की और कहा उसका बदला यह है कि इसे जेल की सलाखों में डाल दिया जाए, इसे कैद बंद कर दिया जाए। पूरा मंजर और पूरा पासा पलट दिया गया और उसकी सजा भी बयान कर दी गई कि हजरत यूसुफ की सजा यह है कि उन्हें जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। बहरहाल मामला बड़ा तफसीली है, मैं उस तफसील में बयान जाना नहीं चाहता और उस तफसील को बयान करना नहीं चाहता। जो असल चीज मुझे बयान करने की है, हजरत यूसुफ को जवानी के उस आलम में नाकर्दा गुनाह के जुर्म में जेल के हवाले कर दिया गया। जेल में जाने के बाद हजरत यूसुफ ने कहा रब्बिस सिजनो अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ऐ मेरे रब मेरे लिए कैद खाना बेहतर है उस बुराई से जिस बुराई की तरफ ये लोग मुझे बुला रहे हैं, उस बदकारी और उस बुराई से बेहतर है कि मैं कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करता रहूं, मैं कैद बंद की जिंदगियां गुजारता रहूं, मेरे लिए ये बेहतर है उस बुराई से। चुनांचे मुफस्सिरीन ने लिखा है वलफ़िज़ फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कैद खाने में कई सालों तक अपने नाकर्दा गुनाह की वजह से कैद बंद की जिंदगियां गुजारते रहे। वलफ़िज़ फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन, हजरत यूसुफ उस कैद खाने में कई सालों तक कैद बंद की जिंदगी गुजारते रहे। कुरान मजीद की आयत करीमा की तफसीर में इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर अल जामे लिअहकामिल कुरान के अंदर लिखा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 7 सालों तक जेल की सलाखों में रहे। और अल्लामा कुर्तुबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हवाले से लिखा है कि तकरीबन 12 सालों तक हजरत यूसुफ जेल की जिंदगी गुजारते रहे और जेल की जिंदगी को उन्होंने बेहतर कहा। बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर यह एतराज हो सकता है कि कुरान करीम की आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बिज़अ का लफ्ज इस्तेमाल किया है और अरबी जबान में बिज़अ का इतलाक 3 से लेकर के 9 तक की गिनती को होता है। हजरत यूसुफ 3 से लेकर के 9 साल के दरमियान जेल की सलाखों में रहे, लेकिन चूंकि ये आयत करीमा उस पैराए बयान में है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 साथी जेल से निकलते हैं, हजरत यूसुफ उनसे कहते हैं कि जेल से निकलने के बाद अपने बादशाह के पास जाकर के मेरे बारे में उनको पूरी तफसील तुम बताना। इस पूरी आयत करीमा के बाद अल्लाह ताला कहता है वलबिसा फ़िस्सिज्नि बिज़अ सिनीन, गोया कि उन दोनों साथियों के निकलने के बाद हजरत यूसुफ तकरीबन 3 से 9 साल तक जेल में रहे और पूरी मुद्दत जेल में रहने की तकरीबन 12 साल की है। वो हजरत यूसुफ अपनी जवानी के आलम में उस बदकारी और उस गुनाह से बचने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैद बंद की सोबतों को बर्दाश्त किया, लेकिन उस गुनाह को कबूल न किया, उस गुनाह के करीब जाने से इनकार कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी का तज़किरा अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान करीम में किया है ताकि उम्मत के नौजवान हजरत यूसुफ की जवानी को अपने लिए उस्वा और आइडियल और नमूना बनाए। वहीं पर दूसरी तरफ एक तरफ जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गुनाह से बचने के लिए 12 साल तक जेल की सलाखों में रहते हैं, तो दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदियन पहुंचते हैं, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलम्मा वरदा माअ मदियना वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून व वजदा मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र से भागते हुए मदियन पहुंचते हैं, मदियन के कुएं के पास उन्होंने एक मंजर देखा। वो मंजर ये है कि सारे चरवाहे अपनी बकरियों के रेवड़ों को पानी पिला रहे हैं और दूर 2 लड़कियां अपने बकरियों को रोके खड़ी हैं, इस इंतजार में है कि ये लोग पानी पिला करके रवाना होंगे, तब हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा फमा खत्मुकुमा, तुम दोनों का माजरा क्या है? सारे लोग अपने बकरियों को पानी पिला रहे हैं, तुम लोग भी इनके साथ आकर के पानी क्यों नहीं पिलाती? उनकी पाक दामनी का आलम यह था कि वो इख्तिलास से दूर थी, वो मर्दों के साथ छाना और बशाना
शाना बशाना खड़े होने से परहेज कर रही थी। वो इस बात के इंतजार में थी कि ये मर्द अपने जानवरों को पानी पिला करके यहां से रुखसत होंगे, तब हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। वो शर्म और हया का पैकर वो पाक दामन लड़कियां थी। पाक दामनी का आलम यह था कि अपनी बकरियों को पानियों से रोक करके खड़ी थी, इस इंतजार में कि ये लोग अपनी बकरियों और जानवरों को पानी पिला करके रवाना होंगे, तब हम अपनी जानवरों को पानी पिलाएंगे। अगर मेरी माएं और बहनें ये बात सुन रही हो तो जरा गौर कीजिए मदियन की उन दो लड़कियों पर, और जरा अपनी हालत जार के ऊपर रोना रोइए और मातम कीजिए कि बाजार और सड़कों के ऊपर मर्दों के शाना बशाना, बल्कि मर्दों से आगे खरीदारियों में आप होती हैं, मर्दों को धक्का दे करके बढ़ने वाली हमारी मुस्लिम औरतें होती हैं। आप किसी दुकान के ऊपर खड़े हो जाइए, आपको धक्का दे करके किनारे कर दिया जाएगा। औरतें फर्स्ट लाइन के अंदर खड़ी हो जाएंगी, पहली लाइन के ऊपर खरीदारी में। मुबारकपुर का तो ये माहौल नहीं था, लेकिन चंद सालों से ये माहौल यहां का भी देखा जा रहा है कि रमजानुल मुबारक के अंदर ईद की खरीदारी का आलम वो होता है कि बाजारों में आप जाकर के देखिए, लोगों ने बताया कि काले निकाबात आपको ज्यादा नजर आएंगे, सफेद लिबास और मर्द आपको कम नजर आते हैं। मर्दों को धक्का दे करके ये आगे बढ़ जाती है, इस कदर इख्तिलात होता है बाजारों के अंदर। जरा गौर कीजिए मदियन की उन दो लड़कियों पर, अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए लाई है, लेकिन दूर जानवरों को अपनी रस्सियों को मजबूत पकड़े हुए हैं और अपने जानवरों को उनसे चरवाहों से अलग किए हुए हैं और खुद उन चरवाहों के करीब नहीं जा रही है। वो इस इख्तिलात को बर्दाश्त नहीं कर रही थी, क्योंकि वो शर्म और हया का पैकर वो पाक दामन औरत थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन उनसे पूछ करके उनकी बकरियों को पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ल, फिर दरख्त के साये में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब वो लड़की अपने वालिद गिरामी के पास पूरा वाकया सुनाती है, उनके वालिद गिरामी और मदियन के वो शेख हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलवाते हैं। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्म और हया के चादर में लिपटी हुए हजरत मूसा के पास आती है और आकर के कहती है, इन्ना अभी यदउक, मेरे वालिद गिरामी आपको बुला रहे हैं, लियज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है, उसकी उजरत हमारे वालिद गिरामी देना चाहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदियन के उस बुजुर्ग आदमी के पास, उस बुजुर्ग और शेख के पास जाते हैं और अपना पूरा वाकया तफसीली तौर से बयान करते हैं, मदियन के वो शेख हजरत मूसा के वाकये से, उनकी अमानतदारी से, उनकी दयानतदारी से, उनकी पाकदामनी से मुतासिर होते हैं कि हजरत मूसा ने, इस नौजवान ने मेरी लड़कियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया था, इनको पानी पिलाने के बाद किसी गैर चीज का, किसी गलत चीज का मुतालबा नहीं किया था, पानी पिलाने के साथ साथ कोई कमेंट और कोई तफसीरा पास नहीं किया था, बल्कि बड़ी अमानतदारी के साथ मेरी बच्चियों के साथ इन्होंने सलूक किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से उन्होंने कहा, इन्नी उरीदु अन उनके हक इहदब्नतैया हातैनी अला अन ताजुरनी समानिया हिजज फइन अतममत अशरन फमिन इंदी, मैं चाहता हूं कि अपनी इन दोनों बेटियों में से किसी एक बेटी के साथ अब तुम्हारा निकाह कर दो, तुम्हारी शादी कर दो, और महर ये होगी कि तुम 8 साल तक मेरी खिदमत करते रहोगे, मेरे पास मजदूरी करते रहोगे। फइन अतममत अशरन फमिन इंदिक, अगर तुम 10 साल मुकम्मल मेरी खिदमत और मजदूरी करते रहो तो ये तुम्हारी तरफ से नफल और ततव्वु होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदियन की उस लड़की के साथ शादी करते हैं और महर के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शेख मदियन के 10 साल तक मजदूर और उनके खिदमत गुजार बन करके रहते हैं। जरा इन दोनों वाकयात में गौर कीजिए, एक तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिना से बचने के लिए, बदकारी से बचने के लिए, उस फहश काम से बचने के लिए 10-12 साल तक जेल की सलाखों में रहते हैं ताकि इस बदकारी से बचा जा सके। तो दूसरी तरफ पाकीज़गी की जिंदगी गुजारने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह करने के लिए 10 साल तक महर के तौर पर खिदमतें करते हैं।
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان انبیاء اور صالحین کی جوانیوں کا اسی لیے تذکرہ کیا ہے تاکہ امت کے نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان جوانیوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا، جب یہ مدین سے واپس جا رہے تھے اپنے مصر کو، راستے میں حضرت موسیٰ کو نبوت دی گئی۔ نبوت دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی اصلاح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل اور اپنی قوم کے درمیان خطبہ دینے کے لیے، وعظ اور نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اٹھائیے صحیح البخاری جلد اول کتاب العلم کی ایک لمبی اور تفصیلی روایت اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قام موسیٰ خطیبا فی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی درمیان ایک آدمی نے پوچھا من اعلم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جانکار کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وہم و گمان کے مطابق میں نبی اور پیغمبر ہوں، میرے اوپر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، چونکہ وحی الہی ایک سب سے بڑا علم ہوا کرتی ہے، لہذا حضرت موسیٰ نے اپنے وہم کے مطابق کہا کہ زمین کے اوپر میرے وہم و گمان کے مطابق سب سے بڑا عالم اور جانکار میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ڈانٹ اور ڈپٹ کی اور کہا تم نے اللہ عالم کیوں نہیں کہا؟ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ کی ڈانٹ اور پھٹکار شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کی اور کہا اس سرزمین کے اوپر میرا ایک بندہ ایسا ہے جو مجمع البحرین میں رہتا ہے، جو دو دریاؤں کے سنگم کے پاس رہتا ہے، جن کا نام خضر ہے، وہ تم سے زیادہ جانکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سے ملاقات کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایک مچھلی لو، اس مچھلی کو اپنے زنبیل کے اندر، اپنے جھولے کے اندر رکھو، وہ مچھلی جہاں کہیں بھی جھولے سے نکل کر کے، تمہارے زنبیل سے نکل کر کے، تمہارے مقتل سے نکل کر کے دریا میں کود جائے گی، وہیں پر تمہاری سب سے زیادہ جانکار آدمی حضرت خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وفا شعار شاگرد، اپنے ایک نوجوان شاگرد جن کو قرآن نے فتح کہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا ابرح حتی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، حضرت موسیٰ نے اپنے فتح سے کہا، اپنے نوجوان شاگرد سے کہا میں رکوں گا نہیں جب تک کہ میں مجمع البحرین میں جا کر کے حضرت خضر سے ملاقات نہ کر لوں۔ اور حدیث نبوی کے اندر اس فتح کا نام بیان کیا گیا، صحیح البخاری کی اسی روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ یوشع ابن نون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد حضرت یوشع بن نون کو لے کر کے مجمع البحرین جاتے ہیں۔ گویا کہ نوجوانوں کی یہ خدمت ہے کہ وہ انبیاء کے معاون بھی تھے، وہ انبیاء کے ساتھ ان کے سفر کرنے والے، ان کے رفیق سفر بھی تھے۔ نوجوانوں کی یہ خاصیت ہے، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد کو اپنے ساتھ لیا تھا۔ یہ نوجوان دین کی خدمات میں آگے انبیاء کے تعاون میں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رفیق سفر ہے ان کا شاگرد، نوجوان شاگرد، اور یہی نوجوان شاگرد پورے سفر میں حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو دین کی خدمت کرنی ہے تو آپ عالموں کا ساتھ اختیار کیجئے۔ خطبات جمعہ کے لیے اگر وہ کہیں جاتے ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیے۔ اگر آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، دین کی تبلیغ میں ان کے دست بازو سے بن سکتے ہیں، اپنی بائک کے اوپر، اپنی گاڑیوں کے اوپر انہیں بیٹھا کر کے انہیں جمعہ کے خطبات کے لیے، انہیں دعوت و تبلیغ کے لیے لے کر کے جائیے۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ کا یہ شاگرد، یہ نوجوان شاگرد ثواب حاصل کرنے کے لیے، فضیلت حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے نبی کا تعاون کرنے کے لیے، اپنے استاد کی معیت میں ایک لمبا سفر کرتا ہے، اور لمبا سفر، اور اس لمبے سفر کی برکت کیا ہوتی ہے؟ حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ کے بعد نبی اور پیغمبر بنایا جاتا ہے۔
हजरत यूशा बिन नून को उनकी इन्हीं खिदमतों की बदौलत हजरत मूसा के साथ रहने की वजह से उन्होंने जो इल्म इलाही हासिल किया था, उन्होंने जो इल्म शरई हासिल किया था, उसी इल्म शरई की बदौलत हजरत यूशा बिन नून को हजरत मूसा के बाद नबी और पैगंबर बनाया गया। और यही यूशा बिन नून, यही नौजवान शागिर्द, अल्लाह ताला ने इस यूशा बिन नून के साथ जो मौजज़ा कर दिखाया था, दुनिया में किसी बशर के साथ वो मौजज़ा नहीं हुआ है। हजरत यूशा बिन नून को जब नबी और पैगंबर बनाया गया, जब उनको नबूवत दी गई, हजरत यूशा बिन नून बनो इसराइल की क़यादत करते हुए उन्हें लेकर के बैतुल मक़दिस की जानिब चलते हैं। और जब बैतुल मक़दिस की सरजमीन के पास पहुंचते हैं, सूरज के गुरूब होने का वक्त हो जाता है। सहीहुल बुखारी और सही मुस्लिम की एक रिवायत में आता है, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गज़ा नबी मिनल अंबिया, नबियों में से एक नबी ने गज़वा किया। वो नबी कौन थे? अल्लामा नबवी ने अपनी शरह के अंदर लिखा है, वो नबी हजरत यूशा बिन नून थे। और मुस्नद अहमद की रिवायत में वजाहत भी आई है कि वो नबी हजरत यूशा बिन नून, और ये नबी अपने साथियों से कहते हैं, मेरे साथ कोई जल्दबाज आदमी नहीं जाएगा, मेरे साथ ऐसा कोई आदमी नहीं जाएगा जो दुनिया की नेमतों से फायदा उठाने का इंतजार कर रहा हो। मेरे साथ वही आदमी जाएगा जिसे अल्लाह की जात के ऊपर कामिल यकीन हो, जिसे आखिरत के ऊपर कामिल यकीन हो, जो जल्दबाज न हो, जिसे दुनिया की नेमतों से फायदा उठाने का कोई इंतजार न हो, वही शख्स मेरे साथ सिर्फ जाएगा। चुनांचे हजरत यूशा बिन नून जब पूरे बनी इसराइल को लेकर के बैतुल मक़दिस की जानिब आगे बढ़ते हैं, असर का वक्त हो जाता है, तकरीबन सूरज के गुरूब होने का वक्त होता है। हजरत यूशा बिन नून ने कहा, अल्लाह ताला, ये बनो इसराइल 40 सालों तक अर्ज़ मुक़द्दसा में भटकती रही, बैतुल मक़दिस फतह करने की ख्वाहिश अपने क़ुलूब व अज़हान में, अपने दिलो दिमाग में पैवस्त करके, अपने दिलो दिमाग में बैठा करके 40 सालों तक वादिय तीह में भटकती रही। इस दरमियान दो नबियों का इंतकाल हुआ। हजरत हारून भी वादिय तीह में दुनिया से रुखसत हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी वादिय तीह में दुनिया से रुखसत हो गए। यूशा बिन नून की क़यादत में जब बनु इसराइल बैतुल मक़दिस की सरजमीन के करीब पहुंचती है, हजरत यूशा बिन नून ने दुआ की, अल्लाह ताला, बड़ी आरज़ू और तमन्नाओं के साथ, एक लंबी आरज़ू और तमन्ना के बाद, 40 साल आरज़ू और तमन्नाओं के बाद, दो नबियों को खोने के बाद हम इस सरजमीन को फतह करने के लिए आए हैं। सूरज के गुरूब होने का वक्त करीब आ चुका है, अल्लाह ताला तो सूरज को हमारे लिए रोक दे। अल्लाह ताला ने हजरत यूशा बिन नून की दुआ की बदौलत ये मौजज़ा कर दिखाया था कि हजरत यूशा बिन नून के लिए और बनो इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने सूरज को रोक दिया, यहां तक कि बनो इसराइल बैतुल मक़दिस के अंदर फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए। ये वो मौजज़ा है जो उसी नौजवान शागिर्द की नबूवत के बाद उसे मिलता है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रफीक सफर था। जब उनको नबी और पैगंबर बनाया गया, अल्लाह ताला ने इतना अजीम मौजज़ा दिया कि सूरज की गर्दिशों को रोक दिया। वो सूरज वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, जो अपने मुस्तक़र और अपने मदार के ऊपर जो घूमता है, वो सूरज अपने मदार और अपने महवर के ऊपर घूमता है। अल्लाह ताला ने उस सूरज को हजरत यूशा बिन नून के लिए रोक दिया था, यहां तक कि बनु इसराइल ने अर्ज़ मुक़द्दसा को बैतुल मक़दिस को फतह कर दिया था। और फिर मुस्नद अहमद की एक रिवायत में आता है, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम तुहबश शम्सु लिअहदिन लिबशरिन इल्ला लियूशा, यूशा बिन नून के अलावा किसी भी इंसान के लिए सूरज को रोका नहीं गया। यूशा बिन नून के अलावा किसी के साथ ये मौजज़ा नहीं हुआ कि उनके लिए सूरज को रोक दिया जाए। आज जो रिवायतें, मनगढ़ंत रिवायतें, मौजू रिवायतें लोगों के फजाइल में बयान की जाती हैं कि फला और फला सहाबी के लिए सूरज को रोक दिया गया था, खुद रसूल पाक फरमाते हैं, लम तुहबस शम्स लिबशर, यूशा बिन नून के अलावा किसी भी इंसान के लिए सूरज को नहीं रोका गया, उसकी गर्दिश को नहीं रोका गया है।
खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहीह अल बुखारी की रिवायत और हदीस के रावी इमरान इब्न हुसैन, सुनन नबी दाऊद की रिवायत, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर से वापस आ रहे थे। खैबर से वापसी के मौके पर रात भर मुसलमानों ने सफर किया था। बाज़ लोगों ने कहा तबूक से वापस आ रहे थे। रात भर मुसलमानों ने सफर किया था। पूरा लश्कर रात के आखिरी हिस्से में पड़ाव करता है और क़याम करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा तुम हमारे लिए नमाज फजर का इंतजार करना और फजर का जब वक्त हो जाए हमें बेदार करना और फजर की अजान देना। सारे सहाबे किराम थके मादे थे, गज़वे की थकावट थी, सफर की थकावट थी, सारे सहाबा सो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। यहां तक कि हजरत बिलाल तलुए फजर का इंतजार करते करते, हजरत बिलाल अपने कजावे और पालान के ऊपर टेक लगा करके इंतजार करते करते उनकी आंख भी गालिब आ जाती है। हजरत बिलाल भी सो जाते हैं, उनकी आंख भी लग जाती है और इस कदर गहरी आंख लगती है, मुसलमानों को इस कदर गहरी नींद लगती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख उस वक्त खुलती है जबकि आपके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। सूरज तलू हो गया, फजर का वक्त गुजर गया, सूरज की रोशनी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर पड़ती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते हैं। जागने के बाद आपने सहाबे किराम को बेदार किया और बेदार करने के बाद कहा ये बस्ती जिनों की बस्ती है, ये वादी जिनों की वादी है, यहां से तुम फौरन रवाना हो जाओ। और आगे चल करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया, सहाबे किराम ने नमाज फजर को कज़ा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरज नहीं रुका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज अदा से कज़ा हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरज नहीं रुका। बहरहाल सूरज सिर्फ एक नबी के लिए रुका है और हजरत यूशा बिन नून के लिए रुका है। और यूशा बिन नून कौन थे? वही नौजवान शागिर्द जो हजरत मूसा के साथ उनके रफीक सफर थे, जो हजरत मूसा के नौजवान शागिर्द थे, बाद में उनको नबी और पैगंबर बनाया गया। अल्लाह ताला ने दुनिया का मुनफरिद मौजज़ा उनके साथ किया था और दुनिया का मुनफरिद मौजज़ा उनको दिया था। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि नौजवानों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उसवा और आइडियल और नमूना रखा है। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सीरतों को पढ़िए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगियों को पढ़िए। आप कुरान मजीद की वो सूरह कहफ उठाइए, अल्लाह ताला ने सूरह कहफ के अंदर असहाबुल कहफ के नौजवानों का तज़किरा किया है, 7 स्लीपर्स का तज़किरा किया है। वो 7 स्लीपर्स के जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत से कब्ल ईमान कबूल करते हैं, जब तौहीद की रोशनी उनके क़ुलूब व अज़हान में पैवस्त हो जाती है, बादशाह वक्त उनके ईमान का दुश्मन बन जाता है। और नतीजा ये होता है, इख्तिसार के साथ मैं इस वाक़े को बयान कर रहा हूँ क्योंकि तफसील का मौका मेरे पास नहीं है। फिर उसके बाद जब बादशाह वक्त इन नौजवानों के दीन और ईमान का दुश्मन बन जाता है, जान और ईमान का ऑप्शन उनके सामने बचता है, या तो जान सलामत रहेगी या तो ईमान सलामत रहेगा। अगर ईमान सलामत रखना चाहते हो तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा, अगर जान सलामत रखना चाहते हो तो ईमान से हाथ धोना पड़ जाएगा। चुनांचे नतीजा ये हुआ कि ये 7 नौजवान अपने वतन को और अपने शहर को छोड़ करके, अपनी बस्तियों को छोड़ करके गारों के अंदर जाकर के पनाह लेते हैं। और अल्लाह ताला ने इन नौजवानों के साथ, इन नई उम्र के नौजवानों के साथ, जिनको कुरान ने फितिया कहा, जिनको कुरान ने नौजवान कहा, नई उम्र के नौजवान थे। ऐसा नहीं है कि ईमान की हालत में और इबादतों की हालत में जवानी और पूरी जिंदगी उन्होंने गुजार दी हो और बाल पक गए हो तब जाकर के अल्लाह ताला ने उनके साथ ये मौजज़ा किया था। जवानी ऐन जवानी के आलम में अल्लाह ताला ने उन नौजवानों के साथ ये मौजज़ा किया। 309 साल तक उन्हें सुलाया और 309 साल सुलाने के बाद उन्हें दोबारा जिंदा किया, दोबारा उन्हें बेदार किया और उस वक्त के लोगों को ये पैगाम दे दिया कि
ان वअद अल्लाहि हक़्क़ुन, कि अल्लाह का वादा बरहक है। जो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि दोबारा मौत के बाद तुम्हें जिंदगी मिलनी है, तो नींद भी आधी मौत है। इस आधी मौत के बाद और एक लंबी जिंदगी, एक लंबी नींद के बाद 309 साल के बाद जिस तरीके से हमने इनको बेदार किया है, इनके जिस्मों को हमने सही और सालिम रखा है, इनके जिस्मों को हमने सलामत रखा है, उसी तरीके से दोबारा हम तुमको तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे अजब से, तुम्हारी रीढ़ की निचली हड्डी से तुम्हें दोबारा जिंदा कर देंगे। असहाबुल कहफ का ये मौजज़ा अल्लाह ताला ने नई उम्र के नौजवानों के साथ किया था। नई उम्र के नौजवानों के साथ अल्लाह ने ये मौजज़ा दिखाया, उनकी नुसरत और मदद की, और नई उम्र के नौजवानों के साथ ये मौजज़ा दिखा करके अल्लाह ने हयात बादल ममात को साबित किया, नौजवानों की अहमियत को साबित किया, और ये बताया कि अगर ईमान के सच्चे और पक्के बन जाओ तो बुजुर्गों के साथ साथ वो लोग जो बुजुर्ग हैं, जो इबादतें कर करके थक चुके हैं, अगर अल्लाह की नुसरतें उन बुजुर्गों के ऊपर आ सकती हैं, तो अगर ईमान के तुम सच्चे और पक्के हो, तुम अपने ईमान के धनी हो, तुम अपने ईमान और फराइज वाजिबात के धनी हो, तो रब की नुसरतें और रहमतें तुम्हारे ऊपर भी नाजिल हो सकती हैं, जैसा कि असहाबुल कहफ के नौजवानों पर नाजिल हुई। और अल्लाह ने ये बात भी बताई कि नौजवान ही वो होते हैं जो बगैर किसी चीज के ऊपर लंबा तजर्बा करने के बजाय जज्बे और हौसले के साथ ईमान कबूल कर लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्की की सरजमीन के ऊपर अपनी दावती काज को आगे बढ़ाया था, आपके हाथ पर ईमान कबूल करने वाले नई उम्र के नौजवान थे, बुजुर्ग तजर्बा कर रहे थे, बुजुर्ग तजिया कर रहे थे, और लंबा तजर्बा और तजिया करने के बाद बुजुर्गों ने ईमान कबूल किया था। लेकिन नौजवानों ने पहली फुर्सत में और पहले मरहले में हक की आवाज के ऊपर लब्बैक कहा था। सबसे पहले मुसलमान हजरत अबू बकर सिद्दीक 38 साल की उम्र में अपनी जवानी के आलम में वो मुसलमान हुए। इब्तिदा में ईमान कबूल करने वाले बिल्कुल नई उम्र के सहाबी हजरत अली इब्न अबी तालिब बिल्कुल नई उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं। हजरत उमर फारूक अपनी जवानी के आलम में ईमान कबूल करते हैं। हजरत उस्मान गनी अपनी जवानी के आलम में ईमान कबूल करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर अव्वल मरहले में ईमान कबूल करने वाले बुजुर्गों से ज्यादा नौजवान थे, क्योंकि बुजुर्ग तजिया और तजर्बा कर रहे थे, बुजुर्ग तजिया और तजर्बों में मशगूल थे, और नौजवानों ने अव्वलीन मरहले में हक की आवाज के ऊपर लब्बैक कहा है। और हर दौर में नौजवानों ने पहली फुर्सत और पहले मरहले में अपने जोश और जज्बे और वलवले के साथ हक की आवाज को के ऊपर लब्बैक कहने के साथ साथ हक के कलमे की एला और सरबुलंदी के लिए काम किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने दावती काज को आगे बढ़ाया था और सुलह हुदैबिया के बाद सन 6 हिजरी के बाद जब आपने खतूत लिखना शुरू किया, सही मुस्लिम जल्द दोम की एक रिवायत में आता है और हदीस के रावी अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, कतब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला कैसर व इला किस्रा व इला नजाशी व इला कुल्ल जब्बारिन यदऊहुम इला इस्लाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शाहान को, तमाम बादशाहों को, अरब व अजम के तमाम हुक्मरानों को खत लिखा। आपने कैसर रोम को खत लिखा, आपने किस्रा के हुक्मरा, आपने फारस के हुक्मरा किस्रा को खत लिखा, आपने हबशा के हुक्मरा नजाशी को खत लिखा। तमाम बादशाहों को खतूत आपने लिखा। आपने रोमन अंपायर और पर्सियन अंपायर को खतूत लिखे और खतूत लिख करके आपने उन सहाबा किराम को, अपने नौजवान सहाबा किराम को दिया। चुनांचे कैसर रोम के पास खत लेकर के जाने वाले हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा सहमी, किस्रा के पास खत लेकर जाने वाले हजरत दहिया इब्ने खलीफा कल्बी, मकरूकिस के पास खत लेकर के जाने वाले हजरत हातिम इब्ने अबी बलता, इस तरीके से बहरैन के पास खत लिखने जाने वाले एक नौजवान सहाबे किराम को, नई उम्र के सहाबे किराम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दावती काम के लिए अरब व अजम के हुक्मरा के पास एक लंबी मुसाफत के लिए खतूत लिख करके दे करके भेजा। और ये सहाबे किराम, ये नौजवान सहाबे किराम अपनी जवानी के आलम में दीन की नशो इशात का जज्बा लिए हुए कैसर रूम के दरबार में पहुंचते हैं, हिरकल के दरबार में पहुंचते हैं, किस्रा के दरबार में पहुंचते हैं, मकूकिस के दरबार में पहुंचते हैं और अलल ऐलान
डंके की चोट के ऊपर उन्हें इस्लाम की दावत देते हैं। वरीब इब्ने आमिर नौजवान सहाबी, एक नई उम्र के सहाबी, जब रुस्तम जमा के दरबार में पहुंचते हैं, एलानिया अंदाज में रुस्तम जमा को इस्लाम की दावत देते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा अब्तासना लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादतिल इबादी इला इबादतिल्लाहि वहदा। अल्लाह ने हमें भेजा है ताकि हम बंदों की गुलामी से आजाद करके उन्हें इस्लाम के साए में ले आकर के खड़ा करें। हम उन्हें बंदों की गुलामी से आजाद करा करके उन्हें अदियान के तंग राहों से निकाल करके इस्लाम के कुशादा साहराओं के ऊपर और रोशन साहराओं के ऊपर गामजन करें। इस तरीके से रसूल पाक के दावती काज को आगे बढ़ाने वाले नौजवान सहाबे किराम, जंगों में किरदार अदा करने वाले रसूल पाक के नौजवान सहाबे किराम, हजरत खालिद बिन वलीद जिन्होंने जंगों के अंदर सिपह सालारी और कमांडरी का रोल अदा किया, एक नौजवान सहाबी गज़वे मूता के अंदर कमांडरी और सिपह सालारी का किरदार अदा करने वाले 17 साल की उम्र के नौजवान सहाबी हजरत उसामा इब्ने ज़ैद, इस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों में किरदार अदा करने वाले नई उम्र के नौजवान सहाबी, कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाले मोहम्मद अल फातिह 22 साल की उम्र में उन्होंने कुस्तुनतुनिया के ऊपर चढ़ाई की थी और 22 साल की उम्र में उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया था। हमारे सिंध और हिंद को फतह करने वाले मोहम्मद इब्नुल कासिम 17-18 साल की उम्र के नौजवान, उन्होंने सिंध और हिंद के ऊपर चढ़ाई की थी और सिंध और हिंद को फतह कर लिया था। इस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम और आपके असलाफ नौजवान सहाबा और नौजवान सलफ ने वो किरदार अदा किया है कि आपके सामने बड़े से बड़े उसवे और नमूने मौजूद हैं। लेकिन आज क्या वजह है, हम फुटबॉलरों की नक्काली करते हैं, हम फिल्मी एक्टरों को अपना उसवा और नमूना मानते हैं, हम क्रिकेटरों को, हम गवैयों को, हम नक्कालों और रक्काशों को अपना उसवा और नमूना मानने के ऊपर तुले हुए हैं। हमारे सामने उसवों की भरमार है। अल्लाह ताला ने हमारे सामने सहाबे किराम, नौजवान सहाबे किराम को हमारे लिए उसवा और आइडियल बना के रखा है। और सिर्फ इन नौजवान सहाबे किराम ने सिर्फ जज्बाती काम नहीं किया है, ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ जंगों के अंदर इन्होंने किरदार अदा किया हो, ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ इन्होंने दावती काम, लंबे लंबे सफर किए हो, ताकत और कुव्वत का काम किया हो, सिर्फ जज्बाती काम, बल्कि संजीदा काम में नौजवान सहाबे किराम आगे आगे थे। कुरान करीम की तफसीर के अंदर सबसे माहिर सहाबी, एक नई उम्र के नौजवान हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, जिन्हें दुनिया रईसुल मुफस्सिरीन कहती है, जिनसे तफसीर पूछने वाले बड़े बड़े सहाबे किराम होते थे, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, जिनके बारे में सहीहुल बुखारी जिल्द दोम किताब तफसीर कुरान की एक रिवायत में आता है, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे अपनी शूरा, अपनी कैबिनेट में दाखिल किया था। हालांकि उमर फारूक की शूरा में बड़े बड़े सहाबे किराम थे, मैं नई उम्र का सहाबी था। हजरत उमर की शूरा में सिर्फ बदरी सहाबी थे, लेकिन मैं नई उम्र का सहाबी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के बारे में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा, ऐ उमर फारूक, एक नई उम्र के सहाबी को आप हमारी मजलिसों में, अपने कैबिनेट में, अपने शूरा में शामिल करते हैं। हालांकि इसकी उम्र के तो हमारे बेटे हैं, हमारे बेटे इसकी उम्र के हैं, हमारे बेटों की उम्र को हमारे सामने हमारे बराबर तुम बैठाते हो। हजरत उमर फारूक ने कहा, उनके खिदमत और उनके इल्मी सलाहियत की बुनियाद पर मैं उन्हें अपनी शूरा में दाखिल करता हूं। चुनांचे एक रोज हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को बुलाया गया, तमाम शूरा के हजरात हाजिर थे। हजरत उमर फारूक ने कहा कि लोगों, जरा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह की तफसीर बयान करो। सारे लोगों ने अलग अलग तफसीरें बयान की। किसी ने कहा कि जब अल्लाह की मदद आ जाए तो फिर तौबा और इस्तिगफार किया जाए, किसी ने कहा अल्लाह की मदद बहुत करीब है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा कि कुरान करीम की आयत करीमा की वो तफसीर नहीं है जो इन सहाबे किराम ने बयान की है, बल्कि कुरान की इस आयत करीमा की तफसीर ये है कि अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के जरिए से, इस सूरह के जरिए से लोगों को खबर कर दिया है और नबी पाक को खबर कर दिया है, ऐ नबी पाक, आपकी वफात का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। हजरत उमर फारूक ने कहा कि मैं भी इस सूरह की यही तफसीर जानता था। इस सूरह के जरिए से अल्लाह ताला ने
नबी पाक को आपकी वफात की खबर दी है। तफसील का मौका नहीं है, वरना मैं तफसील आपके सामने बयान करता। जब कुरान करीम की तदवीन का मसला आया, संजीदा काम है, तसनीफी काम है। कुरान करीम की तदवीन का मसला आया दौरे सिद्दीकी के अंदर, हजरत उमर फारूक के मशवरे से जब कुरान की तदवीन करने का मसला पेश आया तो हजरत ज़ैद इब्न साबित एक नौजवान सहाबी को बुलाया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुद कहा, अपने अल्फाज हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के ये अल्फाज सहीहुल बुखारी जेल्द अल-उम किताब तफसीर कुरान के अंदर मज़कूर है। हदीस के रावी हजरत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत ज़ैद इब्न साबित फरमाते हैं मुझे तदवीन कुरान के लिए बुलाया गया और जो जुमला कहा गया, इन्नका रजुलुन शाबुन आकिलुन ला नत्तहिमुका, आप एक नौजवान सहाबी हैं, एक नौजवान सहाबी, नई उम्र के सहाबी हैं, आप अक्लमंद हैं, आपके ऊपर किसी किस्म की तहमत नहीं है। फजमइल कुरान, लिहाजा आप कुरान को तलाश कीजिए, उसकी आयात जो मुतफर्रिक जगहों पर लिखी हुई है उसको तलाश कर करके उसे एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, उसे एक जगह इकट्ठा कर दीजिए। इस तरीके से कुरान की तदवीन के लिए एक नौजवान सहाबी का इंतखाब हुआ और मेहनत शाक्का के बाद उन्होंने कुरान को एक जगह एक मुसहफ के अंदर इकट्ठा कर दिया। तो गोया बताने का मकसद ये है कि नौजवानों की खिदमत सिर्फ जज्बाती नहीं है, बल्कि नौजवानों की खिदमत संजीदगी के अंदर भी हमारे नौजवान सहाबा ने, हमारे असलाफ ने संजीदा कामों में भी खिदमत अंजाम दी है। तो बताने का मकसद ये है कि जिन असलाफ का तज़किरा हुआ है, जिन अंबिया का तज़किरा हुआ, जिन सहाबा का तज़किरा हुआ है, ये अंबिया, ये सहाबा, ये सुलहा हमारी उम्मत के नौजवानों के लिए उसवा और नमूना है। जरूरत इस बात की है कि इन सहाबा को, इन सुलहा को, इन अंबिया को, इन सलफ सालिहीन को जवानी के इस आलम में अपना उसवा और नमूना बनाया जाए। लेकिन आज कितना फर्क है उन सहाबे किराम की जवानियों में और मिल्लत के नौजवानों की जवानियों में, आप कितना फर्क है। वो नौजवान सहाबे किराम जिनकी जवानियां रब की इबादत, रब की बंदगी, रसूल की इताअत, खिदमत इंसानियत, दीन की दावत और तबलीग, नशो इशाअत, दीन के रास्ते में जिहाद में गुजरी, वो सहाबे किराम जिनकी जवानियां दिन के अंदर घोड़ों की पुश्तों के ऊपर वो बैठ करके रब के रास्ते में जिहाद करने वाले, दावती सफर करने वाले वो नौजवान सहाबे किराम, और रातों को मुसल्ला बिछा करके रब के दरबार में रोने और गिड़गिड़ाने वाले वो नौजवान सहाबे किराम, उनकी जिंदगियां दावती असफार में गुजरती हैं, उनकी जिंदगियां जिहाद के मैदानों में घोड़ों की पुश्तों पर गुजरती हैं, उनकी रातें मुसल्लों के ऊपर रोते और गिड़गिड़ाते हुए गुजरती हैं। और आज हमारे नौजवानों का मामला ये है, रात रात भर मोबाइल के ऊपर ये गेम खेलते हैं, इज्तिमाई गेम खेलते हैं, रात रात भर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ये ऑनलाइन रहते हैं, तरह तरह की अय्याशियां और फहाशियां की जाती है। जरा कंपेयर और मुआवजा कर लीजिए अपने नौजवानों का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक के नौजवानों का, कितना डिफरेंट और कितना फर्क है। वो जिनकी रातें मुसल्लों पर गुजरती थी, वो जिनकी रातें रब के दरबार में सजदगाहों में गुजरती थी, आज उसी उम्मत के नौजवानों की रातें मोबाइल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर गुजरती है। रात रात भर ये फ्री फायर और तरह तरह के गेमों में मुलव्विस रहते हैं। आप रात की तारीकी में निकल जाइए, रात की तारीकी में आपको रोड और सड़कों के किनारे नई उम्र के बिल्कुल नौजवान लड़के इज्तिमाई गेम खेलते हुए नजर आएंगे, हाथ के अंदर मोबाइल, उनकी निगाहें स्क्रीन के ऊपर झुकी हुई, इज्तिमाई गेम खेलते हुए इनकी रातें गुजर जाती हैं। आप रात की तारीकी में आप निकल जाए, आपको ऐसा महसूस होगा गली के किसी नुक्कड़ के ऊपर, गली के किसी किनारे के ऊपर कोई जानवर बैठा हुआ है और हड्डी चबा रहा है। लेकिन अब जब आप करीब जाएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा गली के उस नुक्कड़, उस कोने के ऊपर हमारा नौजवान मोबाइल को अपने कान में लगाए हुए गैर महरमों से गुटरगू करने में और बातें करने में मशगूल है। सारे जानवर सो जाते हैं, कुत्ते और बिल्लियां सो जाती है, और परिंदे और चरिंदो परिंद अपने मस्कनों और घोंसलों में चले जाते हैं। लेकिन हमारा नौजवान रात भर सड़कों के ऊपर मडलाता नजर आता है, रात भर गलियों की जीनत बना रहता है। और हद तो तब है कि जब ये नौजवान कब्रिस्तानों के
اندر رات کے 10-10 بجے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی سامنے کی قبرستان ہے، رات کے 10-10 بجے آپ آئیے اور دیکھیے کہ نئی عمر کے آپ کے اسی علاقے کے لڑکے قبرستان کے اندر بیٹھ کر کے موبائل دیکھنے میں اور فلمیں اور گانے اور بجانے میں مشغول ہوتے ہیں۔ کیا حس تمہاری ختم ہو چکی ہے؟ تمہاری حس ختم ہو چکی ہے، تمہاری حس مر چکی ہے۔ کس قدر دین سے تم لاپرواہ ہو چکے ہو، کس قدر تم بے حس ہو چکے ہو کہ وہ قبرستان جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی جگہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ زور القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کیجئے کیونکہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ آج ہم قبروں کے اندر قبرستانوں میں موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں آخرت یاد نہیں آتی، ہم دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ وہ قبرستان جس کے اندر داخل ہو کر کے صحابہ کرام اس قدر روتے تھے، ان کی داڑیاں تر ہو جایا کرتی تھی، اس قدر روتے تھے کہ ان کی ہچکیاں بچ جاتی تھی، اور ہمارا نوجوان قبرستانوں میں بیٹھ کر کے مووی دیکھنے میں اور فلمیں دیکھنے میں اور سوشل میڈیا اور طرح طرح کے گیموں میں مشغول ہوتا ہے۔ ذرا موازنہ کیجئے اپنی امت کے نوجوانوں کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے نوجوانوں کا۔ یہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی تھی تاکہ سکون کی نیند سو سکو اور دن میں اپنی روزیاں تلاش کر سکو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو ہم نے لباس بنایا، رات کو ہم نے سکون و اطمینان کا ذریعہ بنایا اور دن کو ہم نے تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا۔ ہمارا نوجوان رات بھر الوؤں کی طرح جاگتا ہے اور جاگ کر کے آنکھ کے کنارے گڈھے پڑ جاتے ہیں، گٹکا اور بیڑی اور سگریٹ کھا کر کے اور پی کر کے ان کے پھیپھڑے گل جاتے ہیں، ان کے دانت میں سڑن پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا، رات بھر الوؤں کی طرح جاگ کر کے اپنی صحتیں برباد کر لیتے ہیں، اور دن جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے بنایا پورا دن سوتے ہیں، اور دن کا وہ بابرکت حصہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور آپ تجربہ کر کے دیکھیے صبح کے کاموں میں کس قدر برکت نظر آتی ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان بلکہ ہماری پوری بستی صبح کے وقت سوتی نظر آتی ہے، پھر بھی ہمیں شکوہ ہے کساد بازاری کا، پھر بھی ہمیں شکوہ ہے معیشت کی تنگی کا۔ وہ اوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے بنایا تھا، وہ اوقات ہم سونے میں گزار دیتے ہیں، وہ اوقات ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ امت کے نوجوانوں، غفلت کی اس چادر سے نکلنے کی ضرورت ہے، دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے اوپر نگاہ نہ رکھی، صحابہ کرام کی جوانیوں کو اپنا اسوہ، اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہ بنایا، تمہیں اس طریقے سے مٹا دیا جائے گا جس طریقے سے بغداد کو مٹا دیا گیا، اور بغداد کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر کے انہیں دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا گیا، جس طریقے سے اندلس سے مسلمانوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، تمہارا بھی وہ حال ہونے والا ہے۔ اس لیے دنیا کے بدلتے ہوئے جغرافیائی نقشوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، سیاسی حکمت اور سیاسی بصیرت اپنے قلوب و اذہان میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں جن انبیاء کی جوانیوں کا تذکرہ ہوا ہے، ان کی جوانیوں کے سبق آموز واقعات کو پڑھنے کی اور ان کی جوانیوں کو اپنا آئیڈیل اور اسوہ بنانے کی ضرورت ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین امت کے نوجوانوں کے دین کی، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ رب العالمین امت کے نوجوانوں کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن کر دے۔ رب العالمین تو ہمارے نوجوانوں کے دین کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے ماؤں اور بہنوں کی عفتوں کی، ان کی عظمتوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین تو ہمارے دینی مدارس و مساجد کی حفاظت فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔